Semuanya aku nak buat ni tak wakal je lah. Aku nak balik. Tolong. Hei, aku nak balik lah. Tuan Patik hanya boleh Balik bila aku belajar talian gunung ni. Aku tahu. Tapi aku dah tak peduli. Aku cuma nak balik. Oi. Oi. Sialah. Bodoh lah Feroz. Nak sangat kau dengan Tuan Putri kan? Hebatnya. Hello. Hello. Mana kau? Oi. Is there any way aku boleh break contract dengan Putri kau? Tak ada shortcut ke? Habis tu sana. hamba percaya Tuan Patik bisa melahirkannya. Kita langsung. Kalau aku tak master darat ni besok, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tuan Patik dianggap gagal dan diusir keluar dari Agung. Dah forever atau boleh dah balik? Tuan Patik bisa kembali. Tapi Tuan Patik tidak ada peluang lagi untuk melihat Putri.
Kenapa Tuan Patih nak kahwin dengan Putri? Sebab actually aku pun tak tahu lah. Mula-mula bila aku ingat mustahil lah. Tapi bila Tuan Putri sabar aku melamar dia, agak aku ada chance. Aku ingat senang ber. Aku seorang ke yang kena gini atau ada orang lain? Tuan Patih antara yang pernah mencuba. Ada yang successful? Dah agak dah. Kalau ada yang berjaya, takkan dengar lagi kan? Unless korang boleh have as many as you want lah. Yang lain. Berapa lama korang bertahan? Tidak ada masa yang tetap. Habis aku dah berapa lama aku kat sini? Tuan Patih sudah bersemayam di sini. Buat 2 putaran bulan. 2 minggu? Dah, aku dah tak boleh tahan lagi. Aku nak balik. Aku dah makan asal boleh, hidup tak tentu arah. Please, aku cuma nak balik. Tuan Patih hanya boleh. Mampuslah. Kalau aku bunuh diri macam mana? Tuan Patih tidak bisa ajal di sini. Habis tu? Kau orang bunian kan? Kau tak boleh possess aku ke? Jadi kita boleh joget pada celaka ni dan aku boleh balik. Tidak bisa. Kenapa? Ada yang pernah cuba? Ya, Apa jadi? mereka hilang. Buat selama-lamanya. Pendek. Aku dah tak kisah. Dah. Sialah. Kamu kasih lagi. Tuan Patih tidak bisa ajal. Kita juga. Sekali lagi.
Pati bisa berhenti. Surya sudah menjemur. Tuan Pati bisa pulang sekarang. Cabaran Tuan Pati memang mustahil. Tujuannya untuk mematahkan semangat. Dia seorang yang jujur. Perhatian, panggilan terakhir bagi para penumpang pesawat udara Air Asia dengan nomor penerbangan TZ7521 tujuan Jakarta. Sorry. Tidak apa-apa, Ma. Tidak apa-apa, Ma. Selamat jalan, Ma. Kita bisa bermain lagi. वॉल्यूम मैंने ऐसे ही नहीं पढ़ाई थी। आज दिन कैसा था यूनिवर्सिटी में असलम? बस बाकी दिनों की तरह। और मिर्जा आपका दिन? अरे बहुत बढ़िया। मुझे पता जो था कि आज का खाना बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। ओह, असलम बेटा, तुम अभी भी अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मायूस शायरी सिखा रहे हो क्या? मायूस शायरी नहीं अबू, सिर्फ शायरी। उससे याद आया, तुम मजाक कर रहे हो ना? बेटा, तुम्हारा पूरा म्यूजिक कलेक्शन। हाँ, ये बार बार बोरो ना करना पड़े आपको। तुम्हें जब भी इसकी जरूरत पड़े ना तो मुझे प्लीज बता देना। इससे पैसे जरूर ले लेना इसके। अरे नहीं, मगर हाँ, पैसों की जहां तक बात है, मुझे बस दिल खोल कर झूमने दीजिए। बेटा असलम, तुम्हारे लिए एक पैकेज आया। क्या है? मेरे बर्थडे के लिए गहने? नहीं, रस्सी मंगवाई है। मगर आजकल तो सब कुछ फैशन है। रस्सी? बेटा, ये कौन सा नया शौक पाल लिया तुमने? खैर, ये लीजिए मिर्जा, इस महीने का किराया। शुक्रिया कविता। असलम बेटा, जरा क्या? वक्त की सुई को पीछे घुमाकर अपने बीते हुए कल को बदल दूं, ताकि मेरा आज भी बदल जाए। क्या हुआ? बेटा, जरा वो पानी का जग पकड़ा दो प्लीज। हाँ, वैसे खाना बहुत अच्छा बना है। अच्छा, हाल ही में कुछ नया लिखा है क्या तुमने? शुरू तो किया था, मगर ये पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी शायरी के असली कदरदान तुम्हारे दादू जान थे। हाँ, उन्हें तुम पर नाज था बेटा। क्या कहते थे तुम? असलम एक दिन मशहूर गजलकार बनेगा, हमारी भैंसों की कसम, चाहे तो लिखवा दो। जबकि हम सबको पता था कि उनके पास एक भी भैंस नहीं थी। न जाने कैसे आजादी का आज हुआ एहसास, अपनी फिक्र खोकर गुमशुदा होकर, न जाने कब हाफिले जिंदगी हुई मुकम्मल, एक नया शहर और एक आखिरी अक्षर। गहराई है,
पर उम्दा लिखा है। वैसे खाना बहुत बढ़िया बना करो। अच्छा, वैसे कोर्ट से कोई चिट्ठी आई थी, सब ठीक है ना मिर्जा? हाँ, सब ठीक है। कोर्ट की चिट्ठी ऐसे तो नहीं आई होगी। बेटा, इसमें लिखा है कि हम शायद ये हवेली खो देंगे। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? और ये बात तो हमें कब बताने वाले थे अबू? बेटा, मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था। हर बात को अपने अंदर दबाकर छुपाकर काम नहीं चलता ना अबू। इसका क्या मतलब हुआ? जो जरूरी है मैं वो कर रहा हूँ। तो अब कोर्ट को क्या चाहिए? हमें ये साबित करना होगा कि ये हवेली हमारी है। आपकी नहीं है, आपके अब्बू ने आप ही के नाम की होंगी ना? कायदे से तो हाँ। कायदे से? मतलब इनके बड़े भाई। पर उन्हें तो आपके अब्बू ने घर से निकाल दिया था ना? हाँ, पर कागजात पर अभी भी उनका नाम है। तो आपको क्या सबूत चाहिए अभी? असलम को कोर्ट में गवाही देनी होगी कि मेरे अब्बू ने मेरे भाई को इस हवेली से दखल अंदाज कर दिया था। मैं उस आदमी के पास बिल्कुल नहीं जाने वाला। उन्हें क्यों दखल अंदाज किया गया था? ये जानना जरूरी नहीं है अभी। जरूरी है अबू। बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो हमें इस हवेली से निकालना चाहते हैं। वो ये हवेली हमसे छीनना चाहते हैं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटा। छीनना चाहते हैं? और अगर छीन ली तो हम कहाँ जाएंगे? मैं इतने अरसे से इस हवेली में रह रही हूँ मिर्जा, क्या मुझे इतना जानने का हक नहीं है कि हुआ क्या था? ये मामला बहुत पेचीदा है, तुम नहीं समझोगी कविता। क्या नहीं समझूंगी? सब कुछ घूम फिर कर वापिस आ रहा है। प्लीज रुक जाओ, इस समय नहीं। देखो, इन्हें जरा भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। प्लीज मुझे अकेला छोड़। तुम्हें पता है ना कौन सा दिन है आज? मुझे नहीं याद करना प्लीज। जब उसने पहली बार तुम्हें छुआ था। प्लीज मुझे नहीं याद करना, अकेला छोड़ दो मुझे। उसने अपने आप को तुमसे छुआया था। प्लीज। तुम चीख भी नहीं पाए थे। बंद करो। असलम, असलम, बेटा तुम ठीक तो हो ना? असलम, आवाजें बस जोर जोर से गूंज रही। तुम लंबी सांसें लो असलम। मिर्जा, इसे डॉक्टर की जरूरत है। असलम बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को इस मामले में नहीं खींचना चाह रहा था। इधर आओ, इधर आओ। ये पानी पी लो। इसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते, नहीं तो आस पड़ोस वाले बातें करेंगे और कोर्ट को पता चल गया तो उसकी गवाही कौन मानेगा? लोग तो बातें करेंगे ही मिर्जा। क्या आप देख नहीं सकते कि आपके बेटे को आपकी जरूरत है? इसके दर्द को अनदेखा मत कीजिए मिर्जा। आंखें खोलिए और देखिए कि आप इसके साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। बेटा, तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम की जरूरत नहीं है। मैं चाय बना दूं? शुक्रिया कविता, तुम आराम करो बेटा। नहीं अबू, आप मुझे माफ कर दो असलम, मैं तुम्हारा अब्बू कभी अपने अकेलेपन से बाहर ही नहीं आ पाया। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद मैं खुद को कभी संभाल ही नहीं पाया और तुम्हारे लिए ना मैं तुम्हारी अम्मी की जगह ले पाया और ना ही कभी तुम्हारा अब्बू होने का फर्ज निभा पाया। अबू अबू मुझे जब आपकी जरूरत थी आप क्यों नहीं थे वहां पे? कितनी बार कोशिश की आपको बताने की कि आपके बड़े भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया, और आप तो अम्मी के गम में खोए हुए थे ना। वो हैवान इस घर में घुसकर मेरा नाजायज फायदा उठा रहा था। अरे अपने घर में मैं महफूज नहीं था अबू। कितनी नाइंसाफी है ना। अरे अबू होने का आपको फर्ज निभाना था, मेरी हिफाजत करनी थी। मैं 10 साल का था, 10 साल का। अरे मुझे आज भी उसके चेहरा मेरी आंखों के सामने नजर आता है। मुझे उसके हाथ अपने ऊपर महसूस होते हैं और आप आज कुछ भी नहीं कर पा रहे।
गुनहगार है आप अबू। मैं लड़ाई और नहीं लड़ सकता, हार चुका हूं, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा। आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। बेटा तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं हूं ना। तुम कहना क्या चाहते हो असलम? अबू आप मुझे बताइए कि क्या बेटा? हम ये घर छोड़ के नहीं देते, दे देते उस जानवर को जिससे हम अपना कहते हैं। बेटा नहीं छोड़ सकते, ये हवेली हमारी है। यहाँ तुमने पहला लफ्ज बोला था, और यहाँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे आने की खुशखबरी दी थी मुझे। और यहाँ क्या हुआ था वहां? याद नहीं है। लेकिन कल में रहना बंद करिए अबू। नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपने कल को कैसे पीछे छोड़ूंगा? अब आगे क्या करना है? मेरा सब कुछ तो यही है, तुम, ये हवेली और कविता। काश मैं कुछ कर पाता। काश आप कुछ कर पाते। मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि हवेली हमारी रहे? और जाहिर है तुम कोर्ट तो जाना नहीं चाहोगे। बेटा तुम चाहे तो इस स्टेटमेंट पे साइन कर सकते हो। ये चल जाएगा। सब कुछ घूम फिर कर वापिस आ रहा है। देखो, इन्हें जरा भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तुम्हें पता है ना कौन सा दिन है आज? जब उसने पहली बार तुम्हें छुआ था। उसने अपने आप को तुमसे छुआया था। तुम चीख भी नहीं पाए थे। तुम अब भी उसकी सांसें महसूस कर सकते हो। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। कहाँ टुकुर ताक रहे हैं? चाहिए ई नहीं, ऐसा फिटनेस पंजोली होगा। पता भाभी जी परमिशन प्लीज। ओ सॉरी शिल्पा जेट्टी जी, मैं बोल रहा था डाइटिंग इज योगा लुगाई, लुगाई हैप्पी योगा हैप्पी, पड़चोली योगा डाइटिशियन फ्री। अरे हाँ, भृंगराज भैया ऑल्सो जी, योगा से योगा। हाँ जी ज्वाइन प्लीज, थैंक यू। ग्राहक तो ढूंढने पड़े हैं। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म समोसा और चाय। सीनी ठीक है? न्यूज नहीं ना देखे हैं? तू घना अंग्रेज से तन्ने उन चीनियों की पड़ी है। मैं चाय में चीनी पूछूं? चाय में चीनी एकदम बढ़िया है, रोज ही तो बनाते हैं। मोर बना दूंगा तेरा। बक यहाँ से।
हेलो, अरे पैणचोली नहीं पणचोली। क्या मैंने कही थी तन्ने, नॉर्थ दिल्ली सेंटर में एरियल योगा मत डाल। राजमा चावल के शरीर हवा के लिए अच्छे नहीं होते और तन्ने उनसे एरियल योगा करानी है। सब तो गिरे। वैसे तारे से रख फोन, सारे के सारे डांगड़ पाड़ रखे मैंने। सर, दरवाजे पर कौन बाबा आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो हुक्का लगवाऊं क्या? बैठ बाबा क्या? आ जाइए बाबा, आइए। तो ये क्या घना सर्कस है? भारी फैंसी ड्रेस में घूमे। कौन है तू? मैं पतंजलि। बाय गॉड, इन लोगों ने तो मार्केटिंग में लठ ही गाड़ दी, कॉस्ट्यूम में सेल्समैन भेजे। सच बता, कौन है तू? योगस्य चित्त वृत्ति निरोध अहम आरोग्यम अहम पतंजलि। सुरेश बेटा, थारे से तो गोबर बिना खाया जाएगा। इतनी बार बोला ऐसे लोगों को अंदर ना भेज। सुनो चलिए बाबा। बाबा तू रख जा। लेकिन वत्स, मैं पतंजलि। अरे पंचोली ने पतंजलि को घना चांस दिया। तेरे सारे प्रोडक्ट ट्राई करके देखे कि बेचो। नीम कांति बॉडी सोप, तन मन चमकदार, ये देख फटा बल्ब दिख रहे हूं। फिर क्या? मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, गुड़गावा के रास्ते के गड्ढे मेरे चेहरे पे पड़ गए। और फिर क्या वो पेट वाला सुरेश? पाचक शोधित हरत। हाँ, पाचक शोधित हरत है। साफ पेट साफ शरीर। काम ना आया। इतना गैस कि मन ने सब्सिडी मळे। देखता हूं, मैं घना बिजी हूं। सच बता, क्या चाहिए तुमने? मैंने तो सुना है कि आप इस आधुनिक युग की विख्यात योग संस्थाएं चलाते हैं। सुरेश निकाल एकदम। अरे लख नहीं, कागज कलम निकाल। एकदम गदर लाइन बोली था उनने। और सुन, ऐसे लोग फुल कॉस्ट्यूम में हर शनिवार इतवार अपने मेन सेंटर में होने चाहिए। एकदम ऑर्गेनिक। फोटो निकाल, सोशल मीडिया पे डालेंगे। हाँ, हिमालय बाबा ब्लेसिंग पंचोली योगा फाउंडर मिस्टर पंचोली। हाँ बाबा, तू आशीर्वाद देने की एक्टिंग कर। उधर देख बाबा, स्माइल प्लीज। टैग कर। क्या नाम से टैग करना है तेने? लोग तो मुझे प्यार से योगानंद, योगीश्वर, योगी स्वामी भी बुलाते हैं। बाबा, आधार कार्ड वाला नहीं, इंस्टा वाला नाम बता ना। छोड़, सच बता, क्या चाहिए तुमने? मैं 2500 साल बाद यहाँ फिर आया। क्या 2500 साल बाद आया है? ओए, कौन सी एंटी एजिंग क्रीम लगावे तू? यो है घना बिजनेसमैन, असली माल अपने लिए, हमको बेचे गुड़गावा के गड्ढे। सही है ताऊ, तू बोल, सुन रहे हूं। मैं ये देखने आया हूँ कि आपने योग की नींव को किस तरह सुरक्षित रखा है। ओ ताऊ, नींव तो अपनी घनी स्ट्रोंग है। पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेमस है हम। 1000 से ज्यादा योगा फ्रेंचाइजी चलाते हैं। तो फिर आप प्रतिदिन योग अभ्यास तो करते ही होंगे। बावड़ी तरेड़, हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी ना रोज खावे। हाँ बाबा, लेकिन सवासन रोज करे आऊं मैं। सर, बाबा बैठिए बैठिए बाबा, यहाँ बैठिए। आइए ये बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। सर, गुड़गांव सेंटर से मैसेज आया है, बोल रहा है बॉलीवुड योगा क्लास कैंसिल करना पड़ेगा। मस्तरनिया निकल ली। यो के भड़क है, वो तो अपना मेन क्लास है। गुड़गावा की छोरियां अपने आप को दीपिका आलिया समझे। क्लास कैंसिल ना हो गए। क्लास तू ले वे। नहीं नहीं सर, पिछली बार आप हमको एरोबिक जिंग योगा के लिए भेजे थे, वहां लड़कियों ने हमको इतना मारा इतना मारा। हम नहीं जाएंगे सर, हम नहीं जाएंगे। सोचना पड़ेगा।
सर ताऊ तन्ने योगा आवे अवश्य। सही कल का बोली प्लीज योगा क्लास तू ले रे। क्षमा चाहता हूं, जिस योग सूत्र की आप बात कर रहे हैं वो मेरे काल में नहीं था। मैं तो अष्टांग योग के अंगों को जानता हूं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। ये तो पीएचडी टाइप है। सुनता हूं तू पतंजलि रिजाइन, पंचोली ज्वाइन करने, डबल सैलरी दू, सुथरा बॉस, वर्ल्ड क्लास योगा और कल से बॉलीवुड योगा क्लास तू ले रे। चल अब योगा दिखा। ताऊ सोना नहीं है, योगा दिखा। यही योग है पुत्र, अपने मन को सक्षम और स्थिर बनाना। और दिखने वाली योगा दिखाना, दिखने वाली। अरे दमे वाली नहीं, दम वाला योगा दिखा, दम। तो हम गौमुखासन करें। ओ बाबा काय गौणी, काय गौणी, वक्त लोग ले लेंगे सारे। नो बीफ प्लीज। सुरेश तू योगा चार्ट दिखा। हेलो, पहली योगा से उनका पेट कम ना हुए। तू नया क्लास आ, सुरेश फॉरवर्ड बेंडिंग करा उसे। तू जुम्बा योगा शुरू कर। और जुम्बा फैशन है, सुरेश बैकवर्ड बेंडिंग करा। करने जुम्बा नहीं आता, जैकी श्रॉफ वाला जैकी श्रॉफ भी करे। मैं दिखाता हूं तन्ने, तू पैर पकड़ उसका, तू वीडियो कॉल डाल। म्यूजिक। और दूसरा फोन आ रहा है, रुक तू रख। हेलो क्या? मैंने कही थी बियर योगा 2000 रुपीज संडे मॉर्निंग, 2 बियर फ्री, क्लास खुल जाएगा। ओ बाबा सारे सड़ा होगा क्या? पुलिस आ गई। नंगा योगा और नूड योगा का परमिशन ना है, क्या करे तू? रख। सुरेश जी सर। चाबी निकाल। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, घृणा, द्वेष, अहंकार जैसे भावों को छोड़ना, चित्त की निरंतर वृत्तियों पर संयमता को ओढ़ना, ना कोई ढकोसला, ना कोई दिखावा, बस मानवता को बढ़ावा। अगर इतनी सी बात दुनिया को समझ आ जाए तो मुनाफे से आगे योग फिर से नजर आए। Thank you.
有 number 几号？我的电话号码。哦，86。那么多人挂急诊。喂，疼吗？不会，还好。跌倒？你是怎么弄伤的？关你什么事？对不起。算了，没什么大不了的。上洗手间没开灯，我这人就是有点笨手笨脚。你就不会笨手笨脚啊？不行。什么叫不行？就是不能笨手笨脚。我在工地干活，干我们这一行的，一不小心就会出意外。我看你好像伤得不轻，难道是出意外了？我只能告诉你是意外。只能？难道事实上不是意外？事实？谁对事实感兴趣？你倒是说来听听啊。我叫川江。我叫 Audrey。所以到底发生了什么事？我在金融区的工地干活，他们要新建一座高楼。其实安全带上星期就有问题了，我一直叫老板换新的，他就只会说明天，可是却没有明天。就像那首明日歌，明日复明日，明日何其多。晚上加班，虽然没安全带，我还得干活。然后呢，我就跌了下来。这么高，一定很痛吧？痛啊！那又怎样？什么又怎样？这里是新加坡。小姐，你和我生活在不一样的新加坡。也许是，也许不是。不过我们这里的法律很严明，不像我们国内。我知道你们新加坡人是怎么看中国的。不过呢，像新加坡这样的国家，还需要我们这些穷中国人把你们的都市塑造的繁华明媚哈。对不起，不是这个意思。我也是中国来的，不过这里确实讲法治。是，法治。不过，我需要这份工作，我不想找茬。我朋友去收工，你这就打给他。行了，不用了，行了。不，这可不行，绝对不行。不用了。对不起，我吓着你了吗？对不起。我要是向劳工部投诉，老板会把我送回国的。还有这样的事？法律是法律，不过不是每个老板都是好人。我在老家是工程师，厂子倒了，工作也丢了，经济不景气，1年都找不到工作，要怎么照顾我的父母和2个妹妹呢？所以我向中介贷款来到新加坡，为了找出路，来到这里。只能在烈日下干苦工，扛这个扛那个，太惨了吧！我还是把我朋友电话号码给你吧，如果你改变主意，可以打给他。好了，谢谢。
怎么来了？妈的，还没轮到你吗？号码，什么号码？别磨磨唧。还没轮到我的号码，所以我20分钟之后还有视频会议呢。不如在车上开会行吗？那是重要的跨国会议，我他妈怎么能在车上开？小点声，大家都听见了。看来还要等一阵子。我饭都还没吃呢。我先走了，等一下打给你。喂，你饿不饿啊？哎，你应该吃惯山珍海味了，这里选择不多。没关系，我喝咖啡就好了。不喝茶？新加坡的茶，其实我最喜欢喝清明时的龙井茶。哎，我也喜欢。哎，绿豆糕你喜欢吗？喜欢。以前我和我妹存了1个星期的零用钱，到了星期五才买了绿豆糕吃。不过这里只有小熊饼干。哎，将就将就吧。哎，我请。不，我来请。啊，不，我请不起大餐，但巧克力我买得起，让我来。谢谢。啊！用这个敷一敷吧。谢谢，你真是个好人。你的手疼吗？哦，不疼，没什么。你是怎么弄伤的？我跌倒弄伤的。跌倒？能跌成这样？青1块紫1块？不信吗？我就是跌倒，信不信？这可不是一般的淤青，这种伤我见多了。我妹被我妹夫他……我跟你妹才不一样。是，你跟我妹是不一样，但是我们俩是一样的，我们俩一起受了伤，我们俩都在这家医院在一起活受罪啊。我不可以聊点别的吗？好，但是你要我找你的社工朋友，那你为什么又不去找他？事情可没这么简单。那我的事就简单啊，那你呢？啊，生活无忧啊，又能住大房赚。上流社会的生活也不一定好过。是，我们的生活是不一样，但是……好吧，我不想谈这个。疼吗？多了，你的可乐还蛮管用的。你家人也在新加坡吗？我的父母和妹妹在苏州。我是四川人。玉燕，我叫玉燕。玉燕，沉鱼落雁。来新加坡之前，我先生给我取了个 Audrey 这个洋名，他说玉燕太土了，大陆味太重了，他还让我只叫他 Andy。哼，西洋的东西大家都喜欢。那你会想家吗？想啊，特想，尤其是我妈跟我妹。你他妈怎么不接我电话？我电话是静音的。还没好吗？真是。Nurse， 嘿 Nurse。走，我们去私人医院。
क्या हुआ अन्ना? ये आपके गले में क्या लटक रहा है? ये फूलों का हार है, जनता का प्यार है। ये अन्ना ये तार कैसे? तार? बम है अन्ना। राजू, कहाँ जा रहे हो सब? बचा लो मुझे। बम स्क्वाड वाले को फोन लगाओ। 5 रुपए दे रहा। अन्ना, मैं आ गया। अन्ना, अरे ये सब क्या हो रहा है अन्ना? ये लोग सब भाग क्यों रहे हैं? कौन है? आप बम स्क्वाड वाले हो क्या? अरे अन्ना, आपने पहचाना नहीं? मैं आपका कार्यकर्ता। अरे वो 3 साल पहले जब बीए पास हुआ था तो पहली बार आपके पाँव छूने के लिए पार्टी ऑफिस गया था और आपने यूं लात मार के मुझे दूर भगाया था। अरे नहीं, मैं समझ गया। वहां पर इतने सारे फोटोग्राफर लोग थे, आपको ऐसा करना पड़ा। मैं वही हूँ अन्ना, याद आया ना? देखो, मेरे गले में किसी ने बम लटका दिया है। मैं मरना नहीं चाहता। अगले हफ्ते चुनाव है, मंत्री बनना चाहता हूँ फिर से। ये बम का कुछ करो। मेरे अन्ना के गले में बम किसने बांधा रे? अरे अगर पिछवाड़े में दम है ना तो सामने आओ, फाड़ के रख दूंगा। अरे तेरा अन्ना फट रहा है यहाँ, वो देख पहले, नहीं तो दूंगा एक खींच के। अन्ना, आपने मुझ पर हाथ उठाया अन्ना? अरे अन्ना, अरे मुझे आपका उठा हुआ हाथ कभी खाली नहीं जाना चाहिए अन्ना। हे भगवान, आज समय सर दे दिया। नहीं अन्ना, मैं इसे निकालता हूँ। आसान होता तो मैं नहीं निकालता। बम स्क्वाड वाले को फोन लगा। हाँ। अन्ना, आप मुझे इतना निजी वाला काम बोल रहे हैं, मेरे मोबाइल में ना बैलेंस ही नहीं अन्ना। वो मिश्रा जी अन्ना, से मेरा फोन निकालो। अन्ना, ये फोन लॉक है, पासवर्ड बोलिए ना। वो तुम्हारे भाभी जी का नाम? अरे अन्ना, क्या भाभी जी का नाम भी नहीं जानता? हम सभी कार्यकर्ताओं की माँ है वो। कावेरी। क्या अन्ना, ये फोन अनलॉक नहीं हो रहा है, रॉन्ग पासवर्ड कह रहा है। वो सुरेखा भाई, ट्राई करके देखो। हाँ, सुरेखा अन्ना, मतलब वो महिला संगठन ना? बढ़िया है, बढ़िया है। अन्ना, मोबाइल बढ़िया है। बात कर, फोन पे बात। हाँ अन्ना, लग गया। हाँ, हेलो। अरे आप वो बम स्क्वाड वाले हो ना? हाँ, वो हमारे अन्ना के गले में किसी ने डाल दिया है, उसे निकालने जल्दी आओ। अरे ये गांधी मैदान के बाजू में। हाँ, गाली किसको देता है बे? हैं? क्या भेजा फूट गया मतलब? अन्ना, वो कह रहा है वो आ रहा था सड़क पर, उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में है। क्या? नहीं, तुम एक काम करो, तुम मुझे फोन पे बताओ। हाँ, हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, हाँ, दिख रहा है। हाँ, अच्छा, निचला वाला भाग धीरे से पकड़ो। हाँ, पकड़ लिया। अभी इसको कहाँ डालूं? अन्ना के? हाँ, ये बंदर की औलाद है। ये फोन काट दिया। हे भगवान, मरना नहीं चाहता। अन्ना, डरिए मत, मैं हूं ना, मैं देखता हूँ। एक मिनट, दूर, लाइटिंग दिख रही है।
हाँ अन्ना, ये लाल वाली, हाँ लाल मतलब फेस, हाँ और अन्ना ये पीली मतलब न्यूटन, और ये नीली मतलब अर्थिंग, इसी को निकालना है। हाँ हाँ अरे शेख चिल्ली ने बम का टाइमर एक्टिवेट कर दिया है। नहीं बच्चों, नहीं ना, मैं कुछ देखता हूँ। गुड अन्ना, हाँ ये मिला है ना, बम का मैनुअल। हाँ मैनुअल भी दिया है साथ में। हाँ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ यहाँ लिखा है केवल पासवर्ड डालने पर ही बम नाकाम हो जाएगा। पासवर्ड यानी कि अन्ना के 3 सबसे बड़े घोटाले, मतलब कि स्कैम अगर अन्ना की आवाज में वॉइस कमांड के रूप में डाले जाते हैं तो ही टिक टिक बंद हो जाएगी। किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये हमारे अन्ना के आपको घोटालेबाज इंसान लगते हैं, हाँ? अगर ये बात है तो सामने आओ। ये क्या घोटाले ये है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 8। नहीं है ना, आपने कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं किया ना? इसी बात की पुष्टि के लिए तो पिछले साल हम सभी कार्यकर्ता आमरण अनशन पर बैठे थे। हाँ, लेकिन अब जान पर बीती है और कोई उपाय है, करना पड़ेगा ही। एक बात भी सही है, बोलिए आप ना। गरीब आश्रय घोटाला। Password correct. 2 more confessions required. गरीब आश्रय मतलब जो झोपड़ियां तोड़कर पक्के घर देने वाले थे वो। वही उसके लिए तो हमने वो बोला था कि अबे सामान देने दो मुझे। सड़क सुधार योजना घोटाला। Password correct. 1 more confession required. करेक्ट है। आपने उस सड़कों को भी नहीं छोड़ा ना, तभी वो बम विस्फोट वाला आपको इतना गाली दे रहा था। छोड़ो उसको, उसकी अभी अपने को कोई जरूरत नहीं है। नहीं है ना, बात से उसकी नहीं है ना। हमारे भी कितने लड़कों की एक्सीडेंट में मौत हुई है पता है आपको? हैं गलतियां हुई है हमसे, अरे पर सब ठीक कर देंगे ना। एक आखिरी प्राथमिक शिक्षा योजना घोटाला। Password correct. आपके पाप का घड़ा भर गया है। ये बम आप 90 सेकंड्स में फूट जाएगा। ये गलत है, ये धोखा है। इसके गले में डालते और भागते। जल्दी। नहीं ना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ही मर जाता हूं, शायद यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन सोचो, अगर मैं मर गया तो तुम जैसे हजारों कार्यकर्ता, उनके परिवार, उनके बच्चों का क्या होगा? उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? कोई है और जो हमारी जात की रक्षा करता है? तुम्हें इससे क्या? तुम जाओ, मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ो। हाँ, मेरे जैसा एक नाचीज कार्यकर्ता मर जाए ना तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके जैसा लाखों का रखवाला हर हाल में जिंदा रहना जरूरी है ना। मैं इसे अपने गले में डाल देता हूँ।
मैंने भी जी जान से प्यार किया तेरे अन्ना से। जिंदगी के कई साल गुजारे पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता बनकर, लेकिन कृषि बाजार समिति घोटाले में जिन किसानों ने आत्महत्या की, उसमें मेरा बाप भी अनाथ हो गए हम। मिल गई क्लिप? अब ध्यान से सुनो। इसी क्लिप को चुनाव से एक रात पहले सभी न्यूज चैनलों पे वायरल कर दे। और क्या? क्लिप खोलने का पासवर्ड? सुरेखा भाई। घनश्याम सुंदरा, घनश्याम सुंदरा श्रीधरा। ये क्या शबात के दिन गाना? तौबा, शबात के दिन मना है ना ये सब? ओहो, भूल गया। शनिवार के दिन सिर्फ प्रार्थना और आत्मचिंतन। भगवान ने भी 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन रुक गए। यही समझाते हैं ना हमें रबाय वास्कर हर हफ्ते सिनेगॉग में। रबाय वास्कर? अरे उसकी तो मैं। अरे कुछ तो सोचो, रबाय है हमारे, कितनी शांति और धीरज से टोरा टालमुड़ समझाते हैं। कोई भी मर्द जो तुमसे धीरज और शांति से पेश आए वो तो मसीहा ही हो सकता है। शुक्र है शबात के दिन हंसी मजाक तो नहीं बंद करवाया इस रबाई के बच्चे ने। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि इस घर में और भी हंसी मजाक हो। अरे लिली, इतना भी मत सोचा करो। कैसे ना सोचूं? एक बेटा तो चला गया और दूसरा इतने गरम मिजाज का। आजकल कितना चिड़ा चिड़ा रहता है वो। अगर पर है तो वो आखिर सोलोमन नेरुलकर का बेटा, कितना चिढ़ सकता है। अच्छा आज की नहीं, वो मंदाताई की बेटी का साखरपुड़ा है। मुझे भी बुलाया। तो क्या कैसे जाती? आज शबात है, हम जो ठहरे शनिवार तेली। अब पुरखों ने तेल का व्यापार क्या किया, हम बेनी इसराइली लोगों का तो नाम ही पड़ गया शनिवार तेल। आई बाबा, शबात, चलो चलो। आई पता है आज मैं कितना खुश हूँ। तुझे बैंक की नौकरी मिल गई। अगर नहीं तो उससे भी कहीं ज्यादा खुशी की खबर है। देख डेविड, कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है ना? मैंने पहले ही कहा था लड़की बेनी इजरायली होनी चाहिए। अगर नहीं का तसं काही नहीं है। मुझे इजराइल जाने का इमिग्रेशन वीजा मिल गया है। मतलब? अरे मतलब वही है जो तू समझ रही है। मैं इजराइल जा रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है? मतलब कैसे, कब? अरे मेरा दोस्त है ना बेंजामिन चेउलकर, उसने और मैंने साथ में अर्जी भरी थी। 3 महीने में नंबर आ गया। आई और तूने ये सब हमसे पूछने बताने की जरूरत नहीं समझी? बाबा मुझे पता आपका जवाब क्या होता। जवाब पता था तो उसकी वजह भी पता होगी। बाबा आपकी और मेरी सोच बहुत अलग है। मैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। करने के लिए तो बेटा तेरे लोग, तेरी कौम, तेरा देश यहाँ पर भी है। ये देश भी तो नया ही हुआ है। हाँ बाबा एकदम बरोबर बोलता है तुम्हें, पर ये सब मेरे अतीत की बातें हैं, मेरे भविष्य की नहीं। अरे बेटा, जैसे बीते हुए कल में सुकून था, आने वाले कल में भी आशा होती है। बीते हुए कल में सुकून? किस सुकून की बात कर रही है तू आई? वो सुकून जो इन्होंने अंग्रेज सरकार की सेवा में निकाला जब यूरोप में हिटलर अपने ही लोगों के कत्लेआम कर रहा था। तो क्या करता मैं? बोल देता मिस्टर विल्सन से, नहीं करनी मुझे बॉम्बे मर्केंटाइल एक्सचेंज में नौकरी, भेज दो मुझे यूरोप में, जहां हिटलर के हाथों ऑश्विट्ज में धुआं होकर मैं पोलैंड की धूल में समा जाऊं। यही सोच बाबा आपके और मेरे बीच की दीवार है।
आपने ना अपने धर्म के लिए लड़ना जरूरी समझा और ना ही अपने देश के लिए। और क्या दिया इनको इनकी बॉम्बे मर्केंटाइल एक्सचेंज की नौकरी ने? ये एक टेलीफोन जो हमसे ज्यादा मोहल्ले वालों के काम आता है। क्या कह रहा है तू? मैंने देश के लिए, मैंने अपना बेटा दिया है देश के लिए, मेरा सैमुअल, जो आज इस हिंदुस्तान की जमीन में समा गया है इस देश की आजादी के लिए। और तू उसी मुफ्त में मिली आजादी को अपने जज्बातों की तराजू में तोलकर उसे सस्ता कर रहा है। भाई बाबा से बोल दे कि मेरे से सैमुअल दादा की बात ना करे। मैं अपने सैमुअल दादा की यादों को कभी सस्ता नहीं कर सकता बाबा। वो इस देश के स्वतंत्रता सेनानी होने से पहले मेरे दादा थे। उन्होंने ही मुझे सिखाया था घर वही है जहां डर नहीं है। तुम्हें यहाँ डर है कि भागे जा रहे हो? नहीं, लेकिन जहां पर मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ वहां पर डर जरूर है। और जब अपने ही घर में डर लगे ना आई तो घर नहीं, डर छोड़ना चाहिए। अपना घर? अरे दुनिया के नक्शे पर 10 साल पहले तक नहीं था ये तेरा घर। ना वहां तेरा कोई अपना सगा और ना कोई दोस्त। ना तो तू वहां की भाषा बोल पाता है और ना ही उनके जैसा तेरा रूप। और अचानक से इस अनदेखी अनजानी जगह को तू अपना घर कहने लगा। घर क्या है? यह घर, ये 4 दीवारें और एक छत। अरे घर वही है जहां पर मेरी तलाश खत्म हो। तुम दोनों को ये तुम्हारा घर लग रहा है क्योंकि यही रहते आए हो। और अगर मान लो किसी ने पूछ लिया यहाँ के तो हो नहीं, बाहर वाले हो, तो क्या कहोगे? पिछले 2000 सालों से तो ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। बाबा जिस घड़ी का हमें 2000 सालों से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हम बेनी इजरायली है, बेनी इजरायली, इजरायल के बेटे। आणि त्याच बरोबर मी आहे एक मराठी माणूस। बेटा घर सिर्फ धर्म से बनता तो यूरोप में वो सारे देश एक दूसरे के गले नहीं काटते थे, तो वो सारे ख्रिस्ती। मगर देश समाज तब जाकर बनता है जब उसके लोग अपने से पहले अपने देश या समाज की सोचते हैं। इजराइल में भी तो वही होगा। सिर्फ मजहब से देश प्रेम का सर्टिफिकेट मिलता तो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी ठहरता राजा जयचंद और सबसे नीच मौलाना आजाद। बेटा हम जू और हिंदुस्तानी दोनों रह सकते हैं और यही है हमारी पहचान। बाबा लगता है अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। क्या कभी भी किसी देश ने हमें बहुत ज्यादा देर के लिए अपनाया है क्या? इस देश ने तो अपनाया है। यहाँ तो तेरा बार मिtzवा, हानुका, शबात सभी तो मना सकता है। और देख हमें यहाँ कभी किसी से कोई खतरा नहीं हुआ। अरे आई ठीक ऐसी ही सोच बर्लिन और म्यूनिख के ज्यूज की भी थी। Wir haben uns wirklich nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bitte Sie, verschonen Sie uns. Mein Führer, auch wir sind das Volk. बेटा तुझे हिटलर और गांधी में कोई फर्क नजर नहीं आता? बाबा हम सबके अंदर भगवान भी होता है और शैतान भी। और राजनीति पलक झपकते ही अंदर के भगवान को शैतान बना देती है। अरे 60 करोड़ हिंदुस्तानियों में हम हैं कितने? सिर्फ 30,000। तू काय वेड्या सर को बोलतोस? अरे आई पिछले 4000 सालों से हम जूस किसी समंदर में फेंकी हुई शीशी की तरह वक्त और हालात की लहरों पर बस भटके जा रहे हैं। कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे, मगर ठहरे तो हमेशा मझधार में ही। और मझधार बिना ही किसी का घर टिक नहीं सकता। अभी 60 लाख जानों के बलिदान के बाद मुझे मेरा घर मिल रहा है और बस मैं उसी घर जा रहा हूँ। अरे पर तो ये भी तो कह रहा था ना, घर वहीं जहाँ डर नहीं। तो देख हमें यहाँ कोई डर नहीं है। तू अपने घर की तलाश में अपनों को छोड़ रहा है। अरे तुम दोनों को नहीं छोड़ रहा मैं। वहां पर सब ठिकाने लगते ही तुम दोनों को मैं बुला लूंगा। देख डेविड, जैसे तू तेरा घर छोड़ नहीं सकता वैसे मैं मेरा। दोनों की सोच में मैं सब चीजें उल्टी कर रहा हूँ। लेकिन सूरज भी तो तभी ऊपर आता है ना जब दुनिया पलटती है। आई
बस तू मेरा सामान बांध और मुझसे वादा कर कि 1 साल के बाद ठंडे दिमाग से इजराइल आने का सोचेगी। हे आई नहीं है तो हाँ, तू मेरा सामान बांध के रख। बेंजिया, थांब डेविड, थांब। हाँ, कोण पाहिजे? आई कशी आहे? डेविड, मी बरी आहे रे। 6 महीने बाद याद आई। आई, आज तो वहाँ पे गणपति विसर्जन होगा ना? हाँ। और उधर क्या चल रहा है? हाई कुछ चलता रहता है यहाँ पे। हाई मैं यहाँ पर ना हिब्रू सीख रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मराठी बोलने वाला कोई नहीं है। आई अच्छा देख, अभी हम लोग उधर आ रहे हैं ना, और हम ना आते समय तेरे लिए बेसनाचे लाडू और चकली भी लाएंगे। और आई पुरण पोड़ी मत भूलना। हाँ हाँ, पुरण पोड़ी। हेलो हेलो हेलो, सत्य टेलीग्राम। כוכבים הסער עלה עד שם יושבת שעה חולפת יום ושנה ואת עדיין לא מחכה שעה חולפת יום ושנה चला गया मेरा बेटा अपने घर की रक्षा करते करते। कैसे बनता है ये घर? ईंट और पत्थर से, कागज के चंद टुकड़ों से, लोगों से, या फिर यादों से। חוטפים הימים נותרת לבדך רוצה להאמין ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய் மடியில் கன்றினை போல் மாய கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ அவன் வாய் நிறைய மண்ணை உண்டு மண்டலத்தை காட்டிய பின் ஓய்வெடுத்து தூங்கு. Hi, are you Madam Yashoda? Yes. I came to take a look at your flat. You're selling it, right? Oh, Mr. Singh, अंदर आइए. Thanks, sir. सर बहुत अच्छा है। 3 कमरे। हाँ. तीसरा कमरा? पीछे. तो ये मेरा बेटा का कमरा है. शायद उसने दरवाजा बंद कर दिया है. आप कमरा देखना चाहता है ना? बॉय, दरवाजा खोलो बॉय. कोई बात नहीं। I can get the size from the other room. What a flat. इसमें इतना spacious है. Quiet भी. That's good. बड़ा किचन. Of course, आज पोंगल है. आप पोंगल जानते? संक्रांति, वासंती है. It's time वासं. நீங்க தமிழா? பாதி தமிழ். அம்மா தமிழ், அப்பா சீக்கியர். என்ன ஒரு ஆச்சரியம். நான் தமிழ், என் கணவர் சீக்கியர். அடடா, இது தெரியாம இவ்வளவு நேரம் ஹிந்தில பேசிட்டோம். நீ பொங்கல் கொண்டாடுவியா? We used to when we were young. நானும் கொண்டாட ட்ரை பண்ணுவேன் வருஷம். அதிகாலையில gather around the pot. சக்கரை சோறு நல்லா சமைச்சு பொங்கி வருது வெயிட் பண்ணுவோம். Then everyone starts பொங்கலோ பொங்கல். Not the same anymore. இப்போதான் எல்லாரும் யங்கா கொண்டாடுறாங்க. எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்க. Busy. எப்போ பார்த்தாலும் busy. உனக்கு என்ன கவலை? ஒரு அக்கறை இல்ல. இந்த வீட்டை உனக்கு ஹோட்டா, நான் வேலைக்காரி. இஷ்டத்துக்கு வர, இஷ்டத்துக்கு போறேன். நான் எதுக்கு வெளியே போறேன்? கோயில போறேனா? நான் தண்ணி அடிக்க போறேனா? நான் வேலைக்கு போறேன். இல்ல வீட்டு வேலை நான் தானே செய்யணும். எனக்கு பொங்க ஒரு
ஒரு இல்ல நாய் மாதிரி வேலை பார்க்கணும். எனக்கு வீட்டு வேலை ஒழுங்கா வராது. என்னால முடிஞ்சது சரியில்ல. ஹெல்ப்பருக்கு நான் தானே சம்பளம் தரேன். எல்லா பில்லும் நான் தானே கட்டுறேன். கரண்ட் காசு, தண்ணி காசு, மார்க்கெட் செலவு. உன் அப்பா இருந்தப்போ எவ்வளவு உதவி செய்வாரு தெரியுமா? பல்ப் மாத்துவாரு, சிங்க் ரிப்பேர் பண்ணுவாரு, சாய் பூசுவாரு, டவுன் ஹவுஸ் கிட்ட பேசுவாரு. செல்லி காசு செலவு இல்ல. அவர் தான் ஆம்பள. இன்னைக்கு பொங்கலா? I'm sorry. இதோட ஊர் கிடையாது. சிங்கப்பூர்ல பொங்கல் பப்ளிக் ஹாலிடே இல்ல. நான் வேலைக்கு போகணும். நாளைக்கு சனிக்கிழமை வீட்ல தான். நாளைக்கு மாட்டு பொங்கல். ஒன்னா சேர்ந்து கொண்டாடலாம். உன்ன மாதிரி எருமைக்கு அதான் அருமை. பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் பா. I said பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். Are you okay? போன வருஷம் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஓ பொங்கல் சாப்பிட்டியா? இல்ல பரவாயில்ல. ஏன் பொங்கல் பிடிக்காதா? பொங்கல் யாருக்கு பிடிக்காம போகும். இன்னைக்கு நல்ல நாள், கண்டிப்பா சாப்பிடணும். சரி ஆண்டி, ரொம்ப நன்றி. ஏஜென்ட் டிராஃபிக்ல மாட்டிருக்காரு. அவர் வந்து சேர்ந்ததும் நம்மளோட டிஸ்கஷன் கொண்டு நோ ஹரிப்பா. இங்க இருந்து பார்க்க நல்லது இது. வெரி பீஸ்ஃபுல். ஹலோ, இன்னுமா டிராஃபிக்ல இருக்க? எனக்கு இந்த வீடு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இப்பவே சொந்த வீடு மாதிரி தான் தோணுது. வந்து ஆக்சுவலியா இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்லாம் இருக்கு. பொதுவா ஆண்டியை நானே எல்லாம் செட்டில் பண்ணிடலாமே. ஏஜென்ட் ஃபீ மிச்சம். ஏஜென்ட் ஃபீஸ் வேணா சக்குனுவா. ஆண்டி அவங்க மகனும் தான் இருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்வீட். ஓ ப்ளீஸ், டோட்டல் ஆப்போசிட். எவ்வளோ சீக்கிரம் இதை செட்டில் பண்ணி அந்த விட்டு விட்டு கிளம்புறோம்னா அவ்வளோ பெட்டர். அவங்ககிட்ட நேரடியாக சொல்லிட்டு விட்டேன், நான் தனியாக வாழ போகிறேன், உங்களை அப்பப்போ வந்து பார்ப்பேன், அது பிடிக்கலையா மொத்தமாக நினைக்கிறேன். அப்படியே வாங்கிட்டு போயிட்டாங்களா? சரி சரி, அவங்கள பற்றி பேச வேணாம். தயவு செஞ்சு சீக்கிரமாவா. Someone has said you're moving. Yes, my mother. She said I'm not moving to a coffin. Why? சிலாமெல்லாம் மனுஷங்களே இல்லை, பேய்ங்க. உங்களோட வாழ்ந்து பார்த்தா தான் தெரியும். சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். What's a big 35? I wonder if that's how my boy feels. அவன் எப்போ பார்த்தாலும் ரூம்ல தான் இருப்பான். சம்டைம்ஸ் அவன் வீட்டில் இருக்கிறதா இல்லையா எனக்கே தெரியாது. Maybe that's his escape from me. நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணுவியா? ஜிம்முக்கு போவியா? அடிக்கடி போக மாட்டேன். நேரம் கிடைச்சா ஸ்விமிங், ஜாகிங் போவேன். குட் பாய். அதான் உடம்பு ஃபிட்டா இருக்கு. மை பாய் அவன் குண்டு சபி சபி. he loves his food. நாள் பூரா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி தான் இருப்பா. ஐ நோ பீங் குட் அட் கம்ப்யூட்டர்னா அவன் எதிர்காலத்துக்கு நல்லது. ஆனா ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்லைன்னா உடம்பு என்ன ஆகும்? I tell him he must exercise. ஆனா he gets so angry with me. நான் சின்ன வயசுல his father passed away. அதுக்காக நான் அவகிட்ட கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன். அவன் எதுக்காக என்ன ஆகும்? சாரி, ரொம்ப பேசிட்டேனா? I don't have much company these days. My boy stays in his room the whole day. வீட்டுக்கு விசிட்டர் வந்து போட்டோ தொனையா just talk and talk and talk and talk. உங்கள்கிட்ட பேச எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இந்த பொங்கல் சூப்பரா இருக்கு. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பொங்கல் நான் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்லயும் சாப்பிட்டதே கிடையாது. வீட்டுல செஞ்சுட்டு ரெஸ்டாரண்ட் பொங்கலுக்கு எந்த டேஸ்ட் வருமா? உண்மைதான் ஆண்டி, நீங்க ரொம்ப அருமையா சமைக்கிறீங்க. My boy likes my cooking too. That is the problem. அது சும்மா பேபி ஃபேட்டா இருக்கும். வளர வளர தானா குறையும். ஆமா, வளர்ந்த பிறகு எல்லாம் சரியாயிரும். உன்ன மாதிரி ஹேண்ட்ஸமா இருப்பான். ஐயோ ஆண்டி, ரொம்ப புகழ்றீங்க. ஆக்சுவலி உனக்கு அவனோட ஜாலியா இருக்கு தெரியுமா? Maybe we are related, huh? Singapore is a small country, you never know. And we are a small community. நீ தனியா எப்படி இருக்க போற? தனிமைக்காக ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். You are nothing like my mother. I'm sure you're a good mother.
பேர் என்னப்பா? பாலா. Maria Anthony. Okay. Are you okay? I'm okay. துணி கம்பிகள் கனா ஆனா heights கொஞ்சம் பயம். இது ஒரு ஹைட்ஸ்னா பயமா? பயம் தான். ஒரு நாள் கீழே எட்டி பார்த்தேன். துணிங்க pile of clothes விழுந்து கிடக்கு. சக்கரா. சரி நீங்க எங்கே இருங்க? கம்பள நான் உள்ள விடுவேன். இல்ல பரவாயில்லப்பா. நீ வீட்டு வந்த விழுந்து நீ பரவாயில்ல. ஹைட்ஸ்னா பயம்னு சொல்றீங்க. உங்க பையனை ஒரு ப்ராப்ளம். No. Too dangerous for him. நானே செய்றேன். Don't worry. ஹலோ. இன்னும் இங்கே தான் இருக்கேன். ரொம்ப நல்லவங்க. ஆனா அவங்க பையனுக்கு தான் ரொம்ப செலவு கொடுக்காங்க. நீங்க இருக்க இது அவங்களும் அவங்க மகனு தான் இருக்காங்க. பையன் ரூம்லயே இருப்பாரா? இன்னும் நேரில் கூட பார்க்கல. ஏன் என்ன சொல்ற? நோயா அப்படிலாம் இருக்கு. காலியா இருக்கா? இப்போ ஒரு சும்மா யாரும் தங்குற மாதிரியே தெரியல. ஆனா அவங்க வேற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பாவிங்க பம்பல் மாட்டி விட்ட பைத்தியமா நீ. அடுத்து இந்த பொம்பளை என்ன செய்ய போதோ? யூ நோ வாட், நான் இப்பவே கிளம்புறேன். யூ பெட்டர் பி மீ த கப்பா. ஓ என் பையன் நீங்க என்ன பண்ற? ஒண்ணும் இல்லை. நீ ரூம்ல தான் இருக்கனால ஏன் குளிக்க வந்த? Are you trying to take the பொங்கல்? பாலு எனக்கு பசிக்குது. ஐயோ இப்போ பார்த்தாலும் பசி. டிவி பண்டாரம். 12 o'clock lunch சாப்பிட போறோம்ல. ஆனா எனக்கு இப்போ பசிக்குது. Balu, stop this nonsense. Amma told you you are going on a diet. Okay? காலையில தான் பிஸ்கெட் மைலோ சாப்பிட்டல. இன்னும் என்ன வேணும்? எனக்கு பொங்கல் வேணும். No பொங்கல் for you. ரொம்ப இனிப்பு. ஆனா இன்னைக்கு பொங்கல். இது நம்ம கலாச்சாரம். மம்மி ப்ளீஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியல? நீங்க செஞ்ச பொங்கல்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பெஸ்ட் பொங்கல், பெஸ்ட் மம்மி. இனிப்பா பேசி என்ன மயக்காத. Just look at you, so fat. உன் ஏஜ் பசங்களா பாரு. நீ மட்டும் எருமை மாதிரி இருக்க. நான் இப்படிதான் இருக்கேன். என்ன பண்றது? பொங்கல் எனக்கு எவ்வளவு embarrassing-ஆ இருக்கு தெரியுமா? When I go and buy clothes for you and ask for your size, எல்லாரும் சிரிப்பாங்க. மூஞ்சி இங்கே போய் வைக்கிறது. உங்க யாரு எனக்கு சட்டை வாங்க சொன்னது? நானே போய் வாங்கிக்கிறேன். நீ என்ன எப்படி சர்வைவ் பண்ணுவ? யார உனக்கு கல்யாணம் பண்ணுவா? when they see how fat you are, உனக்கு வேலையும் கிடைக்காது. நீ தப்பு பண்ணிட்டீங்க. நீ தப்பு பண்ணிட்டீங்க. நேற்று போகி பண்டிகை தானே? பழைய பொருள் எல்லாம் தூக்கி போடுற நாள். நான் இவ்வளவு கேவலமா இருக்கனால இது என்னையும் சேர்த்து தூக்கி எரிஞ்சுக்கணும். உங்க சான்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. So sad. Don't worry, it's not too late. எப்போ வேணாலும் தூக்கி எறியலாம். Wait. I'm not going to let you get better. நீங்க பொங்கல் தரல, ஜன்னல்ல இருந்து கீழே குதிச்சிடுவேன். போய் குதி. Go and die. So sorry, auntie. Are you okay? पोंगल बसंत त्योहार नई शुरुआत होती है पर खत्म भी होती है. पूरी दुनिया में निकल hangna pile of clothes the pile too high. Avan hala kita sonne मेरे खान पट्टी दा sonne pile of clothes चक्कर आ रहा है. पानी ला पोंगल 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 ना संतोषम पोंगल ना बसंत त्योहार Varsha. I keep seeing the power. I keep seeing the power. I keep seeing the power. I keep seeing. It's you. It is you, Balu. I'll give you pongal. Allah satu. Boleh mera orang mana enak. I'm sorry. I'm sorry, Ba.
Mama better go, Mama. कौन यार मैंने कौन Mama kuda irupala. Balu, Mama kuda irupala. थोड़ी देर क्या Nisha. अभिषा मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरे कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बनकर खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं। अंगूरी अंगूरी मेरे पड़ोसियों के पड़ोसियों के पड़ोसियों के घर उनके बड़े ही पुराने नौकर प्रभाती की बिल्कुल नई बीवी है। 5 साल पहले प्रभाती की पहली पत्नी का देहांत हो गया, तो जब वो अपने गांव उसका क्रिया कराने गया तो अंगूरी के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ जोड़ दिया, यानी कि अंगूरी प्रभाती की दूसरी बीवी हुई। पर अंगूरी तो थी उम्र में छोटी और उसकी माँ भी बीमार थी, तो उसकी विदाई 5 साल बाद हुई। अब प्रभाती तो किसी के घर नौकर का काम करता था, तो अंगूरी को इस शर्त पर लाया गया कि वो कोठरी के पीछे वाले कच्चे हिस्से को खोद कर अपना अलग चूल्हा बनाएगी, वहीं खाएगी और वहीं रहेगी। तो मालिक मान गए और अंगूरी शहर आ गई। अब जब भी मोहल्ले में निकलती है, एक रौनक उसके पैरों के साथ साथ चलती है। अरे वाह, ये क्या पहना है अंगूरी? ये तो मेरे पैरों की छेल छुड़ी है। और ये उंगलियों पे? ये तो बिछुआ है। और बाहों पे क्या पहना है? ये तो पछेला है। और माथे पर? आली बंद कहते हैं इसे। आज तूने नाक में कुछ नहीं पहना अंगूरी? पता है, मेरे नाक का नक्शा भी है, इतना बड़ा, मेरी सास ने नहीं दिया। इस तरह अंगूरी अपने चांदी के गहने बड़े नखरे से पहनती भी थी और नखरे से दिखाती भी थी। अब पिछले दिनों जब मौसम फिरा तो अंगूरी का दम उसकी कोठरी में घुटने लगा, तो वो अक्सर मेरे घर के सामने लंबे लंबे नीम के पेड़ों के पास एक कुएं के साथ आकर बैठ जाती थी। ये क्या लिख रही हो बीबी जी? ये कविता लिख रही, तुम पढ़ोगी? ना। क्यों? मेरे को पढ़ना नहीं आता। तो सीख लो। ना, औरतों को पाप लगता है पढ़ने से। औरतों को पाप लगता है, मर्दों को नहीं लगता? ना, मर्द को नहीं लगता। ये तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूँ। तो मैं तो पढ़ती हूँ, मुझे पाप लगेगा? शहर की औरतों को पाप नहीं लगता, गांव की औरतों को लगता है। मैं अंगूरी के चेहरे की तरफ ध्यान लगा के देखती रही। गहरे सांवले रंग में जैसे उसके बदन का मांस गूंथा हुआ हो। अब मैंने अंगूरी के प्रभाती को भी देखा हुआ था, ठिगने कद का, डले हुए मुंह का। तो मुझे लगा कि प्रभाती को इस आटे की लोई को पकाकर खाने का हक है ही नहीं, यानी प्रभाती और अंगूरी का कोई मेल नहीं है। अंगूरी, तुम्हारे गांव में शादी कैसे होती है? लड़की छोटी सी होती है, 5-7 साल की, तब वो किसी के पाँव पूज लेती है। पाँव पूज लेती है? कैसे?
लड़की का बाप जाता है अब फूलों की एक थाली लेकर, साथ में कुछ रुपए और लड़के के आगे रख देता है। ये तो बाप ने पाँव पूजे ना, लड़की ने कहाँ पूजे? लड़की की तरफ से तो पूजे। तो लड़की ने उसे देखा भी नहीं? ना, लड़कियां नहीं देखती। तुम्हारे गांव में लड़कियां अपने होने वाले पति को नहीं देखती? ना, कोई भी लड़की नहीं देखती? ना, जो प्रेम करती है ना वो देखती है। तुम्हारे गांव में लड़कियां प्रेम भी करती हैं? कोई कोई। तो पाप नहीं लगता प्रेम करने से? पाप लगता है, बड़ा पाप लगता है। तो फिर कैसे प्रेम करती है? ये बात ये होती है ना कि जब कोई आदमी किसी छोकरी को कुछ खिला देता है ना तो उससे प्रेम करने लग जाती है। कोई क्या खिला देता है? एक जंगली बूटी होती है, वही पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देता है और लड़की उसी आदमी से प्रेम करने लग जाती है। फिर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता दुनिया का। सच? हाँ, मैं जानती हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा था। मेरी एक सखी थी, इतनी बड़ी थी मेरे से, वो तो पागल हो गई उसके पीछे, शहर चली गई उसके साथ। पता है, बर्फी में डाल के खिलाई थी। वो उसको बहुत सारी चीजें लाकर देता था, शहर से धोती लाता था, चूड़ियां लाता था, शीशे की और मोतियों की माला भी। ये तो चीजें हुई ना, तुझे कैसे पता बूटी खिलाई थी? नहीं खिलाई थी तो उससे वो प्रेम क्यों करने लग गई? प्रेम तो हो जाता है ना? ना, ऐसे कैसे हो जाता है? जिससे माँ बाप बुरा मान जाए, भला उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? तूने वो जंगली बूटी देखी है? ना, मैंने नहीं देखी। वो तो बड़ी दूर से लाते हैं, फिर पान में डालकर या मिठाई में डालकर खिला देते हैं। मेरी अम्मा ने तो पहले से ही कहा था कि किसी के हाथ से मिठाई नहीं खाना। तूने बहुत अच्छा किया, किसी के हाथ की मिठाई नहीं खाई। फिर वो सखी ने कैसे खाई? अपना किया पाएगी। किया पाएगी? बावरी हो गई थी बेचारी, बालों में कंघी भी नहीं लगाती थी और रात को उठ कर गाने गाती थी। क्या गाती थी? पता नहीं क्या गाती थी। जो कोई भी बूटी खा लेती है ना, वो बहुत गाती है, रोती भी बहुत है। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका हो, बेला महका रे महका। बीबी जी, मुझे पढ़ना सिखा दो। क्या हुआ अंगूरी? मुझे अपना नाम लिखना सिखा दो। किसी को खत लिखोगी? पाप नहीं लगेगा पढ़ने से? किसने बंसी बजाई आधी रात को, जिसने पलके जिसने। तू तो बड़ा अच्छा गाती है अंगूरी। नहीं बीबी जी, मुझे गाना नहीं आता। ये तो हमारे गांव में वो मेरी सखी गाती थी। कौन सी सखी? वही जिसने जंगली बूटी खाई थी। अंगूरी, तूने खाना खाया? खाना? रोटी बनाई थी? अभी नहीं। सवेरे बनाई थी। चाय पी? चाय? आज तो दूध ही नहीं था। दूध क्यों नहीं लिया? दूध तो मैं नहीं लेती। तो रोज चाय नहीं पीती? पीती हूँ। तो आज क्यों नहीं पी? दूध तो मैं नहीं, दूध तो वो राम तारा। राम तारा? राम तारा हमारे मोहल्ले का चौकीदार।
सांझा चौकीदार सारी रात पहरा देता है। मुझे याद आया कि जब अंगूरी नहीं आई थी तो वो हर रोज हमारे घरों से चाय मांगा करता था, अलग अलग घर से, और फिर चाय पीकर कुएं के पास खाट डालकर सो जाता था। मुझे ये भी याद आया कि जब से अंगूरी आई थी वो सवेरे सवेरे ग्वाले से दूध लाता, अंगूरी के चूल्हे पर चाय चढ़ाता, और फिर प्रभाती, अंगूरी और राम तारा तीनों कुएं के पास बैठकर चाय पीते। पिछले 3 दिनों से राम तारा छुट्टी लेकर गांव गया हुआ था। अंगूरी, तूने 3 दिनों से खाना नहीं खाया? ना। चाय नहीं पी? राम तारा की सारी आकृति मेरे सामने आ गई। फुर्तीले हाथ, एक हरा बदन, हल्की हल्की शर्माती हुई आंखें, और जुबान पर एक बात करने का खास सलीका। अंगूरी, तूने कहीं जंगली बूटी तो नहीं खा ली? मुझे कसम लागे कि मैंने उसके हाथ से कभी मिठाई भी खाई हो। मैंने तो पान भी नहीं खाया, सिर्फ चाय। जाने उसने चाय में ही। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बनकर तेरे कैनवस पर उतरूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहाँ, कैसे, पता नहीं। जाके शाखन पे हम झूले, लेकिन मन के आंगन में छाँव बाकी है। आए रहे वो गली किचन में थाम के उंगली चलते, लेकिन मन के आंगन में गाँव बाकी है। इनकम की फीस को बंदोबस्त है का? अरे कछु ना भयो, सारी दुनिया घूम के आयो आज। दोबारा ने मने करते हट जाएगो तो नेक्स्ट सही रहेगो। दिन पड़े तो जीतू के संग लगना पड़ेगा। अरे तो का करूं मैं जीतू की अम्मा, तू ही बता। अरे चौकट ना रगड़ तो देगी। तेरे तमंचा हथियार ले हुआ ना तो ये निकाल ला, ले आओ 15,000। बरगलाओ मती ना, चश्मा के बगैर हमारी शक्ल तक तो दिखे ना आया। बंदूक चलान लीजिए, जीतू है आंदो, वही कछु कर पाए कुछ की, ना तो वो कोटरी हम खोल लेंगे आज। एक खबरदार जब आके बारे में सोची तू, पहली थोड़ी तुम्हारी मौत में दाब देंगे। हमें कोई शौक ना है,
और सुन लो जीतू के पापा, टीकम को कॉलेज में दाखिलो है जाना चाहिए। कल तक फीस को इंतजाम ना करो तो वो कोठरी हम खोल लेंगे। आदमी दो जीतू की अम्मा है, तुम तक छुपो तो है। अरे कितनी देर लगेगी? मैं 15,000 लाइब्रेरी में तो यही चाहिए तुझे इज्जत की रोटी। अब जानते कि तुम्हें कारखाने या फिर दे दे तमंचा हमाओ। हम तमंचा ना देंगे। अरे शंख ते मांगन को कह रहे हैं, डाका डालने की ना। कौन जाने का सच है का झूठ है? तुमने कौन सी जांच पड़ताल करी बा शंख की? ऐसा कथन सच में जादू हो? शंख ते मांगन में कहा हो रहा है गई का तुम है? पंडित ने 10 दफे कही कि जब मंदिर को शंखना है चाहे हाथ मत लग गई हो। तुम जनानियन को तो जा बात की मना करो, भाई की पीड़ सबसे ज्यादा उठे। शंखते मांगेंगी कि टीकम की फीस। अम्मा सही कह रही है, मांग लो शंखते। है सकत है मांग तुम्हारी शंख सुन ले। चोरे तू का है ना मांगत अपने मालिक ते हैं? बाने तो टीकम में कारखाने में बुलायो, काम देवे की कह रहा है। अरे मैंने मना कर दी। रात रात जाके जा मारेगा पड़ेगा कि कारखाने जाके काम करेगा। और तुम तो कह रहे थे कि 2 दिनों में हो जाएगा इंतजाम। कैसे होगा इंतजाम? अब जा कह रहे हो? जान दे जीतू, रहने दे। अम्मा मुकारी उसे कहा रखी हो? अरे वही होगी, देख ले। अम्मा जी कौन को खून है? खून? अरे हुआ का बताओ तो। है चाची तू, ये कहानी अच्छी ना है। अरे बताओ तो सही, हुआ का? पंडित जान दे मुझे पंडित, देख हमारी घरवारी अस्पताल में है और के इलाज के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, जान दे मत। अरे भगवान को पैसा, भगवान के मंदिर की संपत्ति पाप लगेगा तो है। अरे भगवान खा करेगा जब खजाने को, जब कोई इंसान भूखों मर जाए। देख पैसा तो मत चाहिए, चाहे जाके लमो डाको डालना पड़े, चाहे कहूँ को खून करना पड़े पंडित। हाँ ले जाओ, जो ले जाना है ले जाओ। और जा संख के छोड़ दो, जा संख में शैतान का वास है। तो बकवास कर रहा है तू, छोड़ भाई, जान दे पंडित। मैंने जाने दो, जान दे पंडित, जान दे कह रहा हूँ, छोड़ दो। मैंने जाने दो। देख गोली चढ़ जाएगी, देख गोली चढ़ जाएगी पंडित, मैं कह रहा हूँ गोली चढ़ जाएगी। कितनी कारी रात थी वो। इतनी बड़ी बात तो मोटे छिपाई। चुप है जाती तू, तो कछु ना मालूम। और पापन थे मत पूछो बात। अच्छा अरे तो अंगुलियां डर डर के जख्म को रेद रही हो, पर अब मरहम लगाए को नाटक। अरे हमने नहीं मारोगा पंडित है, जच्चा बच्चा बचाए की खातिर हम जो बन पड़ो करो। हमने अब हाथा पाई में चल गए और तुमंचा तो क्या करे अब? अच्छा चलो पुरानी बातें ने छोड़ो सब। अम्मा तुम संग दिखाओ तो सही। संभल के लल्लू, पंडित जी ने मत्ते मत्ते कही थी तेरे पापन से, ये बड़ो खतरनाक शंख है, जो मांगोगे पूरो करेगो, पर बाकी साथ साथ हाथ चाहे मारे इतने दिन थे छुपा के बैठी हो। और तुझ मोह बैठी तू में ठोक दूंगा। अरे काहे आप बबरा है रे पापा, मांग लो 15,000, देगो तो देगो, नहीं तो फिर देखेंगे कल कछु और। अरे मांग लो, बालकन की जिंदगी को सवाल है। नहीं नहीं नहीं, हम ना मांगेंगे। लाओ तो हमें मांगने दो। अरे नहीं बेटा, तुम ऐसा करो,
तमंचा दे दो उमाओ, हम ले आएंगे 15,000। तीखा बैंक बड़े को लूट के पैसे दे। मांग के तो देखो, है सकता है जादू है जाए। तो संग मुझे 15,000 रुपया दे दे। जी कह रहा जी संग कहा है रुपया? अरे जैसा पंडित के झूठे चोचले हैं। अम्मा तुम खाना लगाए दो, कल सुबह जल्दी जानो है कारखाने। फिर कोशिश करूंगा कर्जा लेने की। और कुसुम पिकचू सही सुना भयो, हाथ ऐसो चल रहा है जैसे हंगार धर दिया हो। तो पानी में डाल दो। चलो कल जाए बेच दियो, कछु तो पैसा आ जाएंगे। अरे बाबूजी, ये जीतू का घर है का? हम बे बड़ो छोरा है मो, काका में बातें। ये फैक्ट्री से आपके लिए। कौन है? ये जीतू की फैक्ट्री से कछु आया हुआ। अरे मुझे लगता है जीतू को कर्जा मिल गया फैक्ट्री थे। अरे संको जादू चल गो का। हाँ जब मुझे चिट्ठी होते हैं। रुको पढ़ लियो। श्रीमान तिलक सिंह ठाकुर, आपको ये सूचित करते हुए हमें बहुत खेद हो रहा है कि आपके सुपुत्र जितेंद्र सिंह ठाकुर की आज फैक्ट्री में दुर्घटना होने के कारण अकस्मात मृत्यु हो गई। कंपनी ने बहुत अफसोस के साथ ये मुआवजे की रकम आपको भेजी है, 15,000 रुपए। तुम नहीं समझोगी पहलवान, मेरा मतलब है भगवान। तुम देख नहीं सकती, मैं चेस खेल रहा हूँ। ये गाना चलता है ना तो चेक का माहौल रहता है। तुम अकेले क्यों हंस रहे हो? ओए, हंसी कोई पॉटी है जो अकेले नहीं करनी चाहिए है? वो जो आदमी बैठता है ना पॉटी करने की। बकवास बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ना हमेशा मुझे कंफ्यूज कर देती हो। कभी तो बोलती थी कि कान खोल के सुन लो, अब बोल रही हो कि ध्यान से सुनो। ये तो तय कर ले कि कहां से सुनना है। अरे कुछ लोग घर में आने वाले कुछ डार्लिंग, एक बात बता, जब तू पहले मारती थी ना तो बड़े प्यार से मारती थी, लेकिन आजकल जब तुम मारती हो तो हड्डी पसली एक हो जाती है। एक गल बता, तू जब पहले मारती थी तो प्यार से नहीं मारती थी हैं? या आजकल तेरा प्यार बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है? इसलिए पहले तुम समझदार थे और अब जब देखो तो बकवास करते रहते हो। कोई डॉली जवान हो गई है? उसकी शादी के बारे में सोचना तो दूर, वो यहाँ बैठ के चेस खेल रहे हो।
जाओ जल्दी जाके नहा लो और तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में बलविंदर आने वाला होगा। बलविंदर? वो मोटे सुरेंद्र का मुंडा? वो यहाँ नहाने क्यों आ रहा है? उसके कार में पानी नहीं आता या उसे यहाँ का साबुन बहुत पसंद है? फिटे मुंह, देखा फिर बकवास। अरे वो यहाँ नहाने नहीं आ रहा, मैं उसके साथ डॉली का ब्याह कराने की सोच रही हूँ। ओए, ओ सुन लो माय डियर धर्मपत्नी, मैं अपनी डॉली बेटी के लिए मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। अपनी डॉली बेटी के लिए एचडीबी के प्रेसिडेंट मिस्टर ली के बेटे जॉन को सिलेक्ट किया है मैंने। और एक मजे की बात बताऊं, उसे भी डॉली बहुत पसंद है। तुम अपने बैंगन के भरते को, मेरा मतलब है सुरेंद्र के बलविंदर को कैंसिल कर दो। मैं ना बलविंदर के बाप को जबान दे चुकी हूँ। जबान कोई गाली है जो एक बार दे दी तो वापस नहीं ले सकते। वो सारा सोच, प्रेसिडेंट के समधी होंगे तो एचडीबी में हम सटी कितनी इज्जत होती है, और एचडीबी के लोग डॉली बेटी को एचडीबी बोलेंगे वो बात अलग है। ये एचडीबी के लोग तो डॉली को क्यों एचडीबी बोलेंगे भाई? ओ, एचडीबी माने हमारी देसी बहू। हमारा फोन है। हेलो, क्रेडिट कार्ड आई वांट। जाके ना भी लेना। ओए रब्बा, ओ ना जाने की खा के मैं इन्नू सिलेक्ट की तासी। तेल में भीगे हुए समोसे जो तेरी माँ ने बनाए सी। अब पापा को क्यों मारा? वैसे पापा कहाँ गए? अंदर आया होगा किसी रॉन्ग नंबर से फोन, उस बेचारे से रिश्तेदारी निकाल रहे होंगे। हाँ, तो कल भी ना वो क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आया था, पापा ने उसको इंश्योरेंस वाले के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उसको लाइफ इंश्योरेंस बेच दी। वो पता है मैंने। और फिर उस लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से कोई 10% कमीशन मांग लिया है। उस बेचारे को खुद कंपनी से 5% मिलता है। क्या? ओ हाँ मम्मी। हाँ मुझे है ना। हाँ आपसे है ना। बोलो यार, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है मेरी लाडो बेटी, हमें भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी सुनते हो? वो सुन तो रहा हूँ, लेकिन अचानक तुम्हारी आवाज मेरी पत्नी जैसे कैसे हो गई है? ओहो, अभी तक फोन पे लगे हो? डॉली को हमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो क्यों ना हम भी कर ले। जरूरी बात ही तो कर रहा था, अपने 10% कमीशन की। सत्यानाश। हम अभी जो बात कर रहे थे वो वाली बात। डॉली, हाँ हमने है ना, बोलो। हमने है ना, बोलो। आप ही बोलो जी, मुझे ना शर्म आती है। ओ मम्मी जी, ये शर्माने वाला क्या कर रहे हैं? इसमें शर्माने की क्या बात है? डॉली जवान हो गई है, समझदार हो गई है। डॉली बेटा, हमने है ना, हमने जब तेरी माँ मुझे पहले मारती थी ना, तो मेरे मन में लड्डू फूटते थे, लेकिन आजकल जब वो मारती है तो ऐसे लगता है जैसे कि आसपास के गुब्बारे फूट गए हो। ले फूट गए गुब्बारे। मम्मी जी, डैडी जी, ये सब क्या हो रहा है? What's going on? ना आपको सीधी गल भी समझ नहीं आती है। वो डॉगी की शादी वाली बात करनी है और अब लगे फजूल की बातें करने। आई एम सॉरी डॉली बेटा, हमने है ना तेरे लिए लड़का चुनाया। लड़का? हाँ, वो अपने सुरेंद्र अंकल का बेटा बलविंदर। नहीं, मिस्टर ली का बेटा जॉन, उसे सिलेक्ट किया है। शादी होगी तो उसी से होगी। मम्मी जी, दादी जी, आप दोनों ने मेरे लिए अलग अलग लड़के चुने। ओ भाई, मैंने तो एक ही चुना था, ये पता नहीं कहाँ से दूसरा ले आए। ओए चुप कर, जॉन ली पहले आया है, बलविंदर बाद में आया है।
ਤੁਹਾਡੇ जॉन ली में कौन से हीरे जड़े हैं? हीरे नहीं डार्लिंग, खीरे। आई मीन द कुकुम्बर। वो मलेशिया से खीरे, आई मीन द कुकुम्बर इंपोर्ट करके फेयर प्राइस में बेचता है। एट नॉट सच अ फेयर प्राइस। मैंने सारी सेटिंग कर ली है। अब लाइफ लॉन्ग हमारे सलाद में प्याज हो ना हो, खीरे आई मीन द कुकुम्बर जरूर होंगे। आई लव कुकुम्बर। कुकुम्बर के कितने फायदे हैं। सैलेड में डालो, सैंडविच में डालो, और बच जाएगा तो चेहरे पे भी लगा लो। ओए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो बलविंदर भी टेका मार्केट में भिंडी सप्लाई करता है। भिंडी? मम्मी जी, आई हेट लेडीज फिंगर। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये सब्जी की पसंद पे पति चुनोगी? ओए ठीक ही तो कह रही है डॉली। हैं? खीरे और भिंडी में लंबा कौन? खीरा। खीरे और भिंडी में वजनदार कौन? खीरा। ना तुसी डॉली दा ब्याह दूजी बिरादरी में करवाओगे? ओ, गल समझ, बिरादरी अलग हो सकती है पर एचडीबी तो सेम है ना। डॉली का वजन और मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस ब्लॉक से अगले ब्लॉक तक ही उठा सकता हूं मैं डॉली की डोली। पापा जी, ये तो बहुत बढ़िया कहा आपने। अच्छा, ये हुई खूब बात। मैं कहती हूँ कि फैसला होना चाहिए बाय जुगलबंदी। जुगलबंदी? है? जुगलबंदी। 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 तो सुन लो मेरी गल। हो KFC, मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग? हो KFC, मैकडॉनल्ड या बर्गर किंग? वो डॉली को ले जाएगा सिर्फ बलविंदर सिंह। मम्मी जी, क्या बात कही है। डैडी जी, यू गो नेक्स्ट। मैकडॉनल्ड में ही मिलेगी तुम्हें वो हैप्पी वाली मील। मैकडॉनल्ड में ही मिलेगी तुम्हें वो हैप्पी वाली मील। जॉन ली ही देगा डॉली को वो हस्बैंड वाली फील, वो हस्बैंड वाली फील। थैंक यू। ये तो खूब रही जुगलबंदी दादी जी। अब मिलनी चाहिए मुझे भी 2 लाइन सुनाने की आजादी। तो अर्ज किया है। ना मुझे पसंद है खीरा है? ना मुझे पसंद है भिंडी, ना मुझे पसंद है खीरा, ना मुझे पसंद है भिंडी। मेरी पसंद तो है मेरी प्यारी सिंडी। सिंडी सिंडी। वो सिंधी, वो जोकर बुदरानी? कभी नहीं, कभी नहीं। सिंधी नहीं, सिंडी बोल रही है। सिंडी है? तो सिंडी कौन है ये? सिंडी वो जॉन ली है ना? हाँ। जॉन ली, उसकी बहन सिंडी। रुक, मुझे भी तो गिरना है। ओ मम्मी जी, ये दादी जी को क्या हुआ? बेहोश हो गए? ओ दादी जी, तुम डांस क्यों कर रहे हो? ये हुई ना चेकमेट। रिश्ता तो मिस्टर ली के यहाँ ही होना है। बस ये डिसाइड करना है कि डोली जाएगी या आएगी। दस्तक